السلام علیکم، آپ دیکھ رہی ہیں بول نیوز، میں ہوں شمائلہ ارشد اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر سے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ افغانستان اور بھارت مل کر آ جائیں، دونوں اپنا شوق پورا کر لیں، مزہ نہ کرا دیا تو پیسے واپس، ترجمان پاک فوج کا بڑا چیلنج۔ کہا کہ مارکہ حق میں بھارت کا جب منہ کالا کیا تو دنیا نے دیکھا۔ بھارت نے شکست کھانے کے بعد دہشت گردی کو ہوا دی، فتنہ الخوارج کو استعمال کیا۔ افغان طالبان، خوارج اور ہندوستان کا گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ نریندر مودی افغان طالبان کے نئے ہیرو بن کر سامنے آئے۔ دہشت گردوں سے جھڑپوں کے دوران طالبان کا نام نہاد وزیر خارجہ کہاں تھا؟ ان کا اسلام تو کہتا ہے کہ ہندوستان کے پاؤں پڑ جاؤ۔ افغان طالبان کے آنے کے بعد دنیا بھر کے دہشت گرد افغانستان میں موجود ہیں۔ گزشتہ سال 27 خودکش حملے ہوئے، ان واقعات میں سب کے سب افغان نکلے۔ ہندوستانی میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2026 ہے اس میں بھارت اور افغانستان مل کے پاکستان پہ حملہ کریں گے، آ جاؤ تم دونوں کا شوق پورا کر دیتے ہیں۔ ایک بار مزہ نہ کرا دیا نا تو پیسے واپس۔ تو یہ گٹھ جوڑ جو ہے طالبان کا، افغان طالبان کا، خوارج کا، ہندوستان کا، اس جہاد کی ذرا مجھے کسی طرح بتا دیں کہ یہ جو ہے یہ جائز ہے، اس کا کوئی اسلام سے تعلق ہے؟ کیونکہ ان کا اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ جا کے لمبے لیٹ جاؤ، ان کے پیروں میں پڑ جاؤ ہندوستانیوں کے۔ مارکہ حق میں جب ان ہندوستان کا منہ کالا کیا جاتا ہے اور دنیا دیکھتی ہے، how then the effort is immediately put into by the Indians into the non-state actors, that is their proxies, Fitna al-Hindustan or Fitna al-Khawarij. And then we carry out strikes on terrorists on Pak-Afghan border. What Afghans did, who are acting as the Afghan Taliban regime kya karta hai, who is acting as a proxy, as a base of operation for the Indians, they attack Pakistani posts. They come in direct support of the terrorists. پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث خوارج افغانستان میں پھل پھول رہے ہیں۔ بین الاقوامی برادری نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ امریکی حکام نے بھی پاکستان میں جاری دہشت گردی میں ٹی ٹی پی کے ملوث ہونے کی تصدیق کی۔ امریکی ترجمان برائے جنوبی ایشیا بل ہوزنگا نے پریس کانفرنس کے دوران پاکستانی موقف کی تائید کی تھی۔ کس طریقے سے جو آپ اور ہم ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کہ یہ افغانستان جو سا دہشت گردی کی گڑھ بن گیا ہے، یہی ہے یہاں سے ساری دہشت گردی، اب وہ پوری دنیا کیسے کہہ رہی ہے؟ جو ٹیررزم کو فالو نہیں ہے یہ وہ کہہ رہے وہاں پہ دہشت گردی میں پاکستان میں ملوث ہیں اور وہاں موجود ہیں، ان کی وہاں پہ تربیت گاہیں ہیں، ان کے سینٹرز ہیں۔ آج ایران نے کہا ہے کہ جی ہمارے کرائم 30% کم ہو گئے جب سے ہم نے ان کو بھیجنا شروع کیا۔ تو دس از واٹ دی انٹرنیشنل کمیونٹی، United Nations, Security Council, the multiple countries, after analysis, after fact-checking are saying what we have been telling from this forum, from the state of Pakistan has been saying کہ یہ افغانستان جو سا ایک دہشت گردی کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ It's now become، اور یہ افغان طالبان جو سے یہ کوئی حکومت نہیں ہے، یہ ایک گروہ ہے جس نے وہاں قبضہ کیا ہوا ہے، ایک نان انکلوسیو گروہ ہے، اور درجن سے زیادہ وہاں پہ دہشت گرد آرگنائزیشنز کی ماجگاہ میں اس کے نیچے سرپرستی میں پل رہی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ، ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اہم اعداد و شمار بتا دیے۔ 2025 میں ملک بھر میں 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ دہشت گردی کے 5,000 سے زائد واقعات ہوئے، 1,235 شہادتیں ہوئیں، 2,597 دہشت گرد مارے گئے۔ 80% دہشت گردی کے واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے۔ گزشتہ برس 27 خودکش حملے بھی ہوئے۔ یہ خوارج ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دہشت گردی کی جنگ پوری قوم کی جنگ ہے، پاکستان کی ریاست کی، پاکستان کے عوام کی جنگ ہے۔ ان لاسٹ ایئر ریاست پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں باشمول فوج، پولیس، ایف سی، انٹیلیجنس ایجنسیز، انہوں نے کل ملا کر 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے۔ اس میں سے 14,658 جو سے خیبر پختونخوا میں کیے گئے ہیں، بلوچستان میں 58,778 اور ریسٹ آف پاکستان میں 1739۔ پچھلے سال میں جو ٹوٹل ہماری شہادتیں ہیں پاکستانیوں کی دہشت گردی کی جنگ میں وہ ہیں 1,235، اور اس سال 2,597 2,597 terrorists were killed, sent to hell. خیبر پختونخوا almost 80% of the terrorist incidents why they are happening in خیبر پختونخوا۔ پچھلے سال 27 سوسائڈ بامبنگ کے واقعات ہوئے۔
खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालिफत करती है। इनसे पूछता हूँ कि ऑपरेशन नहीं करना तो खवारिज के पैरों में बैठ जाएं। खारजी नूर वली को वजीर आला लगा दें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि KP में सियासी सहूलतकारी दहशत गर्दी को हवा दे रही है। खवारिज ने कभी इन पर हमला नहीं किया, ये इनके मंजूर नज़र बनना चाहते हैं। असम्बली में बैठकर झूठा बयानियाँ बनाते हैं। जब आपके पास कुछ ना हो तो फिर इस तरह की बातें करते हैं। पंजाब और बलूचिस्तान के महाजिर कैंप क्लियर हो गए, लेकिन KP में अब तक कायम हैं। अभी जो सा ना कोई मंतक है, ना कोई लॉजिक है, एक पॉलिटिकल रिटोरिक है जिसमें दूसरे या तीसरे सवाल के बाद इनके पास का जवाब नहीं है कि अच्छा जी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है, फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है। सबको पता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इसका पता नहीं। क्या फरमा रहे हैं दहशतगर्दी पे, इनकी आरा क्या है। जहां 3800 दहशतगर्दी के वाकयात हुए, 80% of these terrorist incidents happened in KPK. What is the government and the ruling party in that province is saying? What is their stance on terrorism? ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ये दहशतगर्दी जो सी अफगानिस्तान से बाकी मुल्कों में क्यों नहीं हो रही। ये कह रहे हैं कि हम नहीं मरने को तैयार, हम नहीं खड़े होंगे, हम इनके साथ शामिल होंगे। कि कभी इन फितनाल ख्वारिज ने, इन दहशतगर्दों ने कभी इन पे हमला क्यों नहीं किया। हर पॉलिटिकल पार्टी पे, उनके अमायदीन पे, उनके लीडरों पे हमला किया या नहीं किया। कौम का एक ही बाप है और वो कायद आज़म है। माजी में वज़ीर आज़म ने उस वक्त के आर्मी चीफ को बाप डिक्लेयर कर दिया था। ये नया बाप लेकर आ गए थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे लिए तमाम सियासी जमातें बराबर हैं। एक लीडर पार्टी को डिक्टेटर के तौर पर चलाता है, ये जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता है तो पड़ जाता है। वो कहता है कि बातचीत करो। वो इतना बाइख्तियार वज़ीर आज़म था कि उसने वक्त के DGISI को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अब वो DGISI किधर हैं? उनको सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। उस वक्त की हुकूमत एक शख्स के गिर्द घूमती थी। वो इतना बाख्तियार वजीर आज़म था कि उस वक्त तो वो कौम के आर्मी चीफ है, उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो अजीम शख्सियत जिसने ये मुल्क बनाया, और कौम का एक ही शायर है हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल। हम तो उसको पढ़ के से आए थे, ये एक नया कौम का बाप लेके आगे थे। आप ये इदारे पे नहीं लगा सकते, ये शख्सियात का खेल था। उस वक्त भी उनको था बातचीत करो। और जो उस वक्त DGI थे वो किधर है इस वक्त, जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। वो जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो जो उस वक्त लीडर था, जो कि अपनी पार्टी को एक एज ए बिल्कुल डिक्टेटर के तौर पे चलाता है। सारी पार्टी तो एक बंदे के रिवॉल्व करती है, उस वक्त भी पूरी हुकूमत तो एक बंदे पे। वो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता है कि बातचीत करो। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और शुरका का शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शोहदाए पाकिस्तान को शानदार खिराज अकीदत पेश किया गया। सिफारती सतह पर भारत को एक और हजीमत का सामना। नरेंद्र मोदी को सदर ट्रंप की तवज्जो हासिल करने के लिए लॉबिंग फर्म हायर करना पड़ गई। मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट को सदर ट्रंप तक पहुंचाने के लिए $18 लाख खर्च किए गए। आपको इस हवाले से मजीद बताएं कि भारतीय सहाफ़ियों ने मोदी सरकार की नाअहली को बेनकाब कर दिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को भी अमरीकी हम मनसब तक रसाई ना होने का इंकशाफ हुआ है। भारतीय सहाफ़ी सुशांत सिंह के मुताबिक जयशंकर, मार्को रूबियो और पैट हेग्सेट से वक्त लेने के अहल नहीं। भारतीय सिफारत खाना मुलाकात के लिए लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल करता है। सहाफ़ी राजू पारू का कहना है कि मोदी एक तरफा बयानात के आदी हैं। 11 बरसों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ना कर सके। गुज़श्ता रोज़ खुद अमरीकी सदर ट्रंप ने भी तस्दीक की थी। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा था कि मोदी को पता है मैं नाराज़ हूँ, इसलिए वो मुझे खुश करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PIA की 75% हिस्सत की कामयाब निस्कारी को बारिश का पहला कतरा करार दे दिया। निस्कारी कमीशन के उमूर से मुतालिक इजलास में वाज़े किया कि खसारे का शिकार इदारों की निस्कारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म ने निस्कारी कमीशन में इस्लाहात के हवाले से काम तेज़ करने की हिदायत की। कहा कि निस्कारी कमीशन में निजी शोबे से बेहतरीन सलाहियतों के हामिल मुतल्लिका अफराद को तैनात किया जाए। तमाम तैनातियाँ मेरिट की बुनियाद पर करने पर जोर दिया। निस्कारी कमीशन को डिजिटाइज़ करने और तमाम निस्कारी मंसूबों का बैनुल अक़वामी मयार की फर्म से थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की भी हिदायत की। में लेकर PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की। बानी PTI बातचीत में दिलचस्पी नहीं रखते। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलाकात का वाज़ेह तरीक़ाकार तय किया है। कानून की पासदारी की जाए तो मुलाकात में कोई रुकावट नहीं, जबकि अपोजिशन लीडर की तैनाती पर हुकूमत की नीयत पर सवाल उठाना बेबुनियाद है।
हुकूमत ने सियासी कशीदगी कम करने के लिए संजीदा कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने कायद नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लेकर PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की, मगर हुकूमत को बखूबी अंदाज़ा है कि बानी PTI बातचीत के मूड में नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से मुलाकात का वाज़ेह तरीक़ाकार तय किया ताकि मुलाकातों के बाद सियासी सरगर्मियों, शोर शराबे और हंगामा आराई से बचा जा सके। उन्होंने कहा अदालत को मुलाकात के ज़ाबता कार पर अमल दरामद की यकीन दहानी भी कराई गई। कानून की पासदारी की जाए तो मुलाकात में कोई रुकावट नहीं। अगर किसी को शिकायत है तो अदालती फोरम मौजूद है। अपोजिशन लीडर की तैनाती पर हुकूमत की नीयत पर सवाल उठाना भी बेबुनियाद है। मुज़ाकरात की बात अगर 5 बड़ों की मुलाकात तक आ गई है तो इसे ना ही समझा जाए, क्योंकि ना 5 बड़े मुलाकात कर सकते हैं और ना ही इसकी ज़रूरत है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू सवाल उठाया कि जब मुलाकातें ही नहीं करने दी जाती तो मुज़ाकरात कैसे होंगे। हम हर मंगल को आते हैं और मुलाकात के बगैर वापस चले जाते हैं। 1 माह से ज़ायद अरसा हो चुका, बानी से किसी की मुलाकात नहीं हुई। हालात मामूल पर लाने की भारी कीमत मांगी जा रही है। मुज़ाकरात की नौबत 5 बड़ों की मुलाकात तक आई है तो फिर ना ही समझो। और जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये ना ही में हो तो मेरा ख्याल है ये जमहूरियत के लिए नुकसान कर रहे हैं। तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया कि फिर खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हुई है। तो अगर आप मुलाकात को इतना डिस्प्यूट बना देते हैं और इतना इशू बनाते हैं तो बात आगे कैसे बढ़ेगी, नॉर्मलाइज आप कैसे करोगे। बहुत अफसोस की बात है, हर ट्यूसडे को हम आ जाते हैं यहाँ से बगैर मुलाकात के चले जाते हैं। DG ISPI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एस्टेब्लिशमेंट से मुमकिना मुज़ाकरात पर वाज़ेह जवाब दे दिया। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा काम सियासी जमातों से बात करना नहीं, जिस सियासी जमात को बात करनी है हुकूमत से करे। हमें किसी सियासी जमात से कोई इशू नहीं, हमारा काम सिक्योरिटी पर बेलाक राय देना है। सियासत का मसला सियासी जमातें बेहतर हल कर लेंगी। पाकिस्तान अंडर 19 ने फाइनल में जिम्बाब्वे को शिकस्त देकर 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ जीत ली है। 159 रन हदफ के ताक़ुब में समीर मिन्हाज शानदार सेंचुरी के साथ नुमायां तरीन रहे। 9 विकेटों से होने वाली कामयाबी में समीर मिन्हाज ने 114 रन का हिस्सा दिया। उमर ज़ेब 4 विकेटों की कारकर्दगी के बाइस काबिले ज़िक्र रहे। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।